Hello students, I welcome you all in this session in which I will tell you the summary of lesson 4 in your moments book, English book, and the summary will be given in the both languages Hindi and English. First of all, I will give you the summary of this lesson in English. In the kingdom of fools, both the king and his minister were idiots. They wanted to do something new, so they ordered the people to sleep all day and keep awake at night, plough their fields, and run their business. The punishment for disobedience was death. Both the king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. Even though it was a sunny day, they saw no one about. Even the cattle were asleep. It was a big surprise for them. But by the evening, the whole town woke up and went about their daily business. Since the strangers were hungry, they went to buy food. They were delighted to find that everything was damn cheap, cost the same, only one would do. After they had cooked and eaten their supper, dinner, the wise guru felt uneasy. He felt that it was not safe to live in a city of fools. But the disciple disagreed with his guru. All he wanted was good cheap food, so he stayed on. The guru went away. The stupid disciple ate lots of bananas, rice, wheat, and ghee. He grew fat like a bull. One day, a thief broke into a rich merchant's house. He entered through a hole in the wall. When he was carrying out his loot, the wall collapsed and killed him on the spot. His brother complained to the king against the merchant, who had made a weak wall. He demanded compensation as well as justice. The king called the merchant to the court. The merchant accepted that the wall was weak. The king declared punishment for him. But the merchant said in self defense that he hadn't put up the wall. The real culprit was the mason or bricklayer. The bricklayer was sent for and ordered to be executed. The bricklayer passed on the blame to a dancing girl who had been going up and down the street all day, and the sound of her anklets distracted his mind. The dancing girl was called to defend herself. She was an old woman now. She agreed. She had walked up and down the street while the wall was being built. But she couldn't help it because of the lazy goldsmith, who was causing delay in making her ornaments. The goldsmith was called for cross questioning. He passed on the blame to the rich merchant who wanted his orders to be finished at the earliest. The rich merchant was the same person whose wall had killed the burglar. He argued that not he but his late father had ordered the jewelry. The king consulted his minister and ruled that somebody had to be punished in place of the late father of the merchant. A new stake had been got made for execution. At the last moment, the minister said
that the merchant was too thin to fit the stake. So the search for a fat man began, and the disciple was found fat and fit for execution. The disciple remembered his wise guru who possessed magic powers. He arrived and insisted on being executed first. The disciple also made the same demand. The king was taken aback. The guru told him the secret. The one to die first would be the king in next life, while the second person to die would be his minister. The king was lost in deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next life. So he made a pact and plan with the minister. They set the guru and his disciple free. In disguise, they went to the stake at night. When their dead bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people recognized them as their king and minister. They mourned and discussed about the future of the kingdom. They caught up with the guru and his disciple and crowned them as the king and his minister. The new rulers changed all the old laws. The night and day were observed as in any other place. Secondly, nothing could be bought for a duddu. So, it was the summary of lesson 4 in the Kingdom of Fools in English. Now, I am going to tell you something about it in Hindi. एक राज्य था, वहाँ के राजा और मिनिस्टर दोनों इडियट थे, दोनों मूर्ख थे, और इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनको सब लोगों से अलग कर दे, सभी राजाओं से कुछ अलग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि दिन के सारे काम रात में होंगे और रात के सारे काम दिन में होंगे। रात का काम क्या होता है? सोना। सोने का काम दिन में होगा और काम करने का जो समय होगा वो रात में होगा। और ये भी ऑर्डर कर दिया कि जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी लोग डर के मारे उनके आदेश का पालन करने लगे, और राजा और मंत्री दोनों खुश थे कि सभी लोग, मतलब ये जो प्रोजेक्ट था मेरा, हम लोगों का, ये सफल रहा, सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन उसी राज्य में एक गुरु और शिष्य दोनों आए, तो उन लोगों ने देखा पूरी धूप खिली हुई है, दिन है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कोई दिख नहीं रहा था वहाँ पे। सभी लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि जानवर भी सो रहे थे, कोई हलचल नहीं, एकदम चारों तरफ सन्नाटा। देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। पूरे शाम तक, शाम होने को आ गई, तब तक इधर उधर टहलते रहे, लेकिन क्या देखा, जैसे ही शाम हुई तुरंत वहाँ पर चहल पहल हो गई। लोग अपने काम में जुट गए, लोग जग गए, काम में जुट गए, जो जिसका बिजनेस था करने लगे। तो इन दोनों को भूख लगी थी, जा कर के किराने का सामान खरीदा, और जब खरीद रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एक डुड्डू में इतना सस्ता था वहाँ पर, एक डुड्डू में आप कुछ भी पा सकते हो। कोई भी चीज़ खरीदो, एक डुड्डू, 1 डुड्डू, और 1 रुपये में उन लोगों ने मतलब जितना सामान उनको चाहिए था, 1 रुपये में सारा सामान मिल गया। सामान ले आए, रात का भोजन बनाए, खाए। उसके बाद गुरु, जो कि बहुत बुद्धिमान था, उसको इस बात का एहसास हो गया था कि ये जगह मूर्खों की है, यहाँ हमारे रहने का कोई काम नहीं है। और इस बात को उसने अपने शिष्य को भी समझाया, लेकिन शिष्य ने सोचा ये गुरु पगला गए हैं, इतना सस्ती जगह छोड़ करके जा कर के जो है और परेशान होंगे, इधर उधर टहलेंगे, महंगाई जहाँ होगी वहाँ जाएंगे, तो जहाँ यहाँ सस्ता है यहाँ पर रहना चाहिए। तो उसने गुरु की बात नहीं माना, कहा गुरुदेव मैं तो यहीं रहूँगा,
यहाँ सारी चीज़ें सस्ती है, मैं यहीं रह कर के खाऊँगा। तो गुरु ने भी बहुत समझाया, लेकिन जब बात समझ में नहीं आई तो कहा ठीक है तुम रहो, तुम्हारी इच्छा है तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये मूर्खों की नगरी है, ये सब जो सस्ता वाला तुम देख रहे हो हिसाब किताब, ये सब बहुत ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, और ये अगले पल तुम्हारे साथ क्या कर दें इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इतना सब समझाने के बाद भी उसने बात नहीं मानी शिष्य ने। अब देखिए, और गुरु चला गया इतना कह करके, और वो जो बेवकूफ़ शिष्य था वो खाने में जुटा रहा, बनाना, राइस, व्हीट, घी ये सब खा खा करके बिल्कुल बैलों की तरह से, सांडों की तरह से मोटा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि एक उसी राज्य में एक धनी व्यापारी था, उसके घर में एक चोर जो है चोरी करने घुसा, सेंध काट करके, दीवार को काट करके। तो जैसे ही अपने लूट का सामान सब वो बाहर निकाल रहा था तो दीवार कमज़ोर थी, उसके सिर पर ही गिर पड़ी और वो वहीं पर मर गया। तो उसका जो भाई था चोर का, वो राजा के दरबार में गया और कहा कि मतलब ये जो मेरा भाई था, ये अपना पुराना बिजनेस करने गया था, मतलब चोरी को बिजनेस बना दिया, बिजनेस करने गया था, और ये जो मर्चेंट हैं इनकी दीवार जो है गिर गई और इससे मेरे भाई की मौत हो गई, मुझे न्याय चाहिए। अब राजा ने मर्चेंट को बुलाया कोर्ट में। मर्चेंट ने भी एक्सेप्ट किया, हाँ भाई दीवार कमज़ोर थी, लेकिन और तुरंत मर्चेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ दीवार कमज़ोर थी। तो राजा ने तुरंत उसके लिए मृत्युदंड की व्यवस्था कर दी, ऑर्डर कर दिया, करने जा रहा था। लेकिन मर्चेंट ने कहा अपने बचाव में कि ये दीवार उसने तो बनाई नहीं थी, उसने ये दीवार, उसकी दीवार थी, उसका घर है, लेकिन उस दीवार को उसने नहीं बनाया था। अपने बचाव में उसने कहा जो वास्तविक जो गलती करने वाला है वो कौन है, वास्तविक दोषी कौन था, जो मैसन, राजमिस्त्री, या जो ईंटों को चुनता है, राजगीर मिस्त्री, द ब्रिक लेयर जो था वो उसको आदेश दिया गया बुलाने के लिए। वो भी कोर्ट में आया और कहा कि तुमने दीवार कमज़ोर बनाई थी, जिससे कि चोर चोरी करने घुसा, दीवार उसके ऊपर गिर गई और मर गया, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। अब ब्रिकलेयर बेचारा सोच रहा है कि हम कैसे बचें। उसने कहा, उसने सारा ब्लेम एक डांसिंग गर्ल पर डाल दिया। कहा जो डांसिंग गर्ल है, जिस दिन मैं दीवार बना रहा था उस दिन इधर से होकर के आ जा रही थी उस रास्ते से, और उसके पायलों की जो खनक थी उससे मेरा ध्यान जो है भंग हुआ, इसी वजह से दीवार कमज़ोर हो गई। अब डांसिंग गर्ल को दरबार में बुलाया गया। डांसिंग गर्ल ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, मैं आ जा रही थी उधर से, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। मैंने गोल्ड स्मिथ को, सुनार को बनाने के लिए दिया था कुछ ज्वेलरी, और वो बार बार जो है मुझे कह रहा था कि सुबह आओ, शाम को आओ, आधे घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ, इसीलिए मुझे बार बार उसके यहाँ जाना पड़ा, उसी रास्ते से होकर के मैं आई गई, और इस मिस्त्री का ध्यान मेरे ऊपर पड़ा और इस वजह से दीवार कमज़ोर बनी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस गोल्ड स्मिथ की है। अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। गोल्ड स्मिथ बेचारा वो भी आया। अब उसको तो ले आए और सारा आरोप उसको बताए कि तुम जो है उस डांसिंग गर्ल को कई बार बुलाए अपने यहाँ, जिसकी वजह से राजमिस्त्री का ध्यान भंग हुआ, उसने दीवार कमज़ोर बनाई, और दीवार कमज़ोर बनने की वजह से एक जो चोर था आज उसकी मृत्यु हो गई। तो अब उसने कहा, तब गोल्ड स्मिथ ने कहा कि जो है मेरे ऊपर प्रेशर था, उस समय मेरे ऊपर दबाव था। जो रिच मर्चेंट्स होते हैं, रिच जो धनी व्यापारी होते हैं, वो लोग पहले अपना काम करवाना चाहते हैं दबाव डाल करके। तो इसी वजह से जो है मैंने पहले उनका काम करना, पहले उनकी ज्वेलरी बनाई
उसके बाद जो है इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाई। इसीलिए इसकी ज्वेलरी बनाने में देर हो गई और बार बार मुझे इसको बुलाना पड़ा अपने शॉप पर। तो राजा ने पूछा कौन था वो रिच मर्चेंट। तो उसने नाम बताया गोल्ड स्मिथ ने। तो अंत में वही रिच मर्चेंट निकला जिसकी दीवार गिरी थी, जिसके घर में चोरी हुई थी। उसी रिच मर्चेंट को बुलाया गया। वो रिच मर्चेंट आया बेचारा फिर से। राजा ने उसको देखते ही कहा मैं तो कह रहा था यही जो है, मैं तो शुरुआत में ही कह रहा था कि यही कल्प्रिट है, यही दोषी है। देखो घूम फिर के फिर से बात वहीं आ गई। यही शुरुआत में दोषी मैं इसको कह रहा था, अंत में फिर से दोषी यही निकला। सब कुछ सर्कल में हो गया। अब उसको बेचारे को पकड़ करके रिच मर्चेंट को ले आए और एक नई सूली बनवाई गई और उस सूली पर उसको जो है खड़ा किया गया। तो क्या देखा मिनिस्टर ने कि सूली के हिसाब से आदमी पतला था, रिच मर्चेंट बहुत दुबला पतला था। राजा को बताया कि तो ये आदमी बहुत दुबला पतला है, ये इसको चढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, जाओ राज्य में देखो जो मोटा आदमी हो उसी को पकड़ कर ले आओ, उसी को फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि किसी न किसी को तो फांसी पे चढ़ना ही है। तो सब लोग गए, सारे सैनिक। तो देखे ये जो चेला राम थे, शिष्य, ये खाने में मस्त थे और खा खा करके बिल्कुल सांड जैसे मोटे हो गए थे। तो इन्हीं को पकड़ करके ले आए, इन्हीं को पकड़ करके ले आए। और जब पकड़ करके ले आए तो ये कह रहे मेरी क्या गलती, मैं तो सन्यासी हूँ। तो उसने सैनिकों ने कहा ठीक है तुम सन्यासी हो, तुम निर्दोष भी हो, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम मोटे हो। ले गए और उसको फांसी पर जो है स्टेक पर खड़ा किए। और जब उसको स्टेक पर खड़ा कर दिए सूली पर, तो मन ही मन उसने अपने गुरु को याद किया। गुरु जो है थोड़ा जादुई शक्तियों वाले थे और गुरु प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ देख सकते थे। तो तुरंत जो है वहाँ पर उपस्थित हो गए, आए और अपने शिष्य के कान में कुछ कहा धीरे से। और उसके बाद कहा राजा से कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। तो जब शिष्य ने सुना तो शिष्य ने कहा नहीं, पहले मुझे पकड़ करके पहले लाया गया था, तो मुझे पहले फांसी पर चढ़ाइए। तो गुरु पहले कह रहा था, गुरु कह रहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ाओ पहले, शिष्य कह रहा था मुझे चढ़ाओ। राजा परेशान हो गया। राजा ने पूछा ये क्या मामला है, मुझे बताओ, तुम बुद्धिमान हो, सन्यासी हो, गुरु हो, मुझे बताओ। तो गुरु ने कहा धीरे से एक किनारे ले जा करके कहा ये जो सूली है ये न्याय के देवता की महान सूली है। इस पर जो फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में भी, सबसे पहले जो चढ़ेगा फांसी वो जो है अगले जन्म में भी इस राज्य का राजा बनेगा, और जो उसके ठीक बाद चढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो राजा ने तुरंत इसको सुन करके उस दिन फांसी का पोस्टपोन कर दिया, कहा कि आज फांसी नहीं होगी, कल होगी। और उसने अपने मिनिस्टर से गुप्त रूप से सलाह किया, कहा अगर ये दोनों मर गए इस सूली पर, तो इस सूली पर अगर मर गए वो लोग, तो ये लोग अगली बार जो है राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे। कि ऐसा किया जाए कि हम लोग फांसी पर चढ़ जाएं, जिससे कि अगले जन्म में भी राज्य हम ही लोगों को मिले। तो ये लोग रात में गए और उस गुरु और शिष्य दोनों को छोड़ दिए, फ्री कर दिए, जेल से आज़ाद कर दिए। और उन लोग का कपड़ा पहन के चले गए वहाँ, कहाँ पर, फांसी घर में। और अंधेरा था। फांसी चढ़ाने वाले जो जल्लाद थे एक एक करके पहले राजा और पहले उसके बाद मंत्री को जो है फांसी पर लटका दिए। लेकिन जब सुबह हुई, दोनों की लाश को जो है चील और कौवों को खाने के लिए डाल दिया गया। तो सब ने देखा ये तो हमारे राजा और मंत्री हैं। सब लोग रोना शुरू कर दिए, सब लोग रोना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद जब सब लोग शांत हुए तो गुरु और शिष्य दोनों लोग जो राज्य छोड़ करके जाने की तैयारी कर रहे थे, उनको पकड़े
सभी राज्य के लोग। कहे कि अब हमारे राजा और मिनिस्टर तो मर गए हैं, मैं चाहता हूँ कि गुरु जो हैं वो हमारे राजा बन जाएं और जो शिष्य हैं वो मिनिस्टर बन जाएं। तो पहले तो जो शिष्य था वो तो पहले तैयार हो गया, लेकिन गुरु को समझाने में थोड़ा समय लगा। गुरु नहीं मान रहे थे, लेकिन अंत में मान गए। अंत में तब गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं राजा बनूंगा, लेकिन राजा बनते ही सबसे पहला काम मेरा होगा कि जो पुराने नियम राजा ने बनाए हैं, मूर्खतापूर्ण जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को मैं सबसे पहले ख़त्म करूंगा। तो सब सब लोग मान गए और गुरु के राजा बनने के बाद सारी चीज़ें पहले की जैसे फिर से हो गई। रात में लोग सोने का काम करने लगे और दिन में लोग अपना अपना व्यवसाय करने लगे। सब कुछ सामान्य हो गया। तो ये थी समरी आपकी लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस समरी को आप लोग कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि अगर बच्चों समरी आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होगा ये नहीं खाने को, कल बोले थे ना आज जाइएगा ले आइएगा। तुम्हारे बोलने का मतलब है क्या है? जब याद न दिलाओ